السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ڈالتے ہیں انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر۔ لیکن دوستو اپیل کرتے ہیں کہ ابھی تک جو ساتھی اس بے باک چینل سے جڑے نہیں ہیں، نئے ہیں، وہ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں، سبسکرائب کر لیں ہمارے اس چینل کو۔ نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ لال سے سفید ہو جائے گا، اور اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائڈ میں بغل میں ایک گھنٹی بن کر نظر آئے گی، اس گھنٹی کو بھی ٹچ کر دیں، اور گھنٹی ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئیں گے۔ تو اس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا، ALL، اس کو ٹچ کر دیں۔ یہ 3 کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل جایا کرے گی۔ اور ناظرین اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر دیا جاتا ہے۔ پلیز یہ کوئی سرکاری چینل نہیں ہے۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے ایسے بے باک چینل باقی رہے تو مہینے میں یا ہفتے میں 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ اس چینل کی مدد کیجئے، ہیلپ کیجئے، مالی تعاون کیجئے، تو یہ چینل ترقی کرے گا اور مضبوط ہوگا۔ ناظرین الحمدللہ روز آنا رات تراویح کے بعد شارپ 10 بجے، ٹھیک 10 بجے وائرل نیوز لائیو کے ذریعے سے بہت اہم عنوان پر لائیو بیان ہو رہا ہے۔ آج بھی بہت اہم بیان ہوگا کہ بندوں کے حق کیا ہے، اور حشر کے میدان میں سب سے زیادہ پریشان کون ہوگا۔ ڈھیر ساری عبادتیں لے کر جائے گا، روزہ، نماز، زکوٰۃ، تہجد، سب، لیکن کیوں پریشان ہوگا؟ بہت تفصیلی بات آج رات میں 10 بجے بھی ہوگی۔ اور ایک اہم درخواست یہ ہے کہ چاند رات آئندہ کل بھی ہو سکتی ہے، اگر 29 روزے اگر ہو رہے تو کل چاند رات رہے گی، اور 30 روزے پورے ہو رہے تو پرسوں چاند رات رہے گی۔ تو جس دن بھی چاند رات رہے گی اس دن میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 10 بجے آپ لوگ اپنے دوستوں کو بھی یہ دعوت پہنچائے، رات کو 10 بجے آپ آن لائن آ جائے۔ لائیو بیان ہوگا 15 منٹ، لیلۃ الجائزہ، چاند رات کے بارے میں، چاند رات کی کتنی اہمیت ہے، اور آدھا گھنٹے تک کے فلسطین، برما، آسام، لبنان، سوڈان، کشمیر، پورا ملک، پوری دنیا کے عالم اسلام کے لیے دعائیں ہوں گی، اور بہت اہم دعا ہوگی انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ، آدھا گھنٹے تک۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ چاند رات کے دن لائیو آپ وائرل نیوز اس چینل پر آ جائیے اور دعا میں شریک ہو جائیے، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیے۔ ناظرین اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے سعودی عرب کی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کو لے کر کافی احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی خبر میں بتایا تھا کہ باقاعدہ وہاں پر ان علاقوں میں عید کے موقع پر کرفیو بھی نافذ رہے گا، اور عیدگاہوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی اس وقت بڑی خبر سعودی عرب سے یہ بھی آئی ہے کہ باقاعدہ دکانوں میں جو ضروری چیزوں کی دکانیں کھلی ہے، کرانہ وغیرہ، راشن وغیرہ کی، تو ان دکانوں میں بھی اگر کورونا کے پابندیوں کی کوئی خلاف ورزی کرتے نظر آتا ہے، کورونا کے لیے جو پابندیاں بتائی گئی اگر کوئی ان پر پابندی کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے تو پھر سخت اس پر کارروائی کی جائے گی، اور اگر وہ باہر ملک کا ہے، بھارت کا ہے، پاکستان کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے، دنیا کے کسی بھی ملک کا ہے، تو اسے سعودی عرب سے نکال دیا جائے گا۔ سعودی وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے دکانوں کے اندر اور باہر کورونا وائرس کے تعلق سے لگائی گئی پابندیوں اور حفاظتی احتیاطی تدابیر کے خلاف ورزی کا ارتکاب کرنے والے تارکین وطن کو یہ بتا دیا ہے کہ پھر انہیں سعودی عرب سے نکال دیا جائے گا، اور وہ دوبارہ پھر کبھی سعودی میں داخل نہیں ہو سکے گے۔ وزارت داخلہ نے تجارتی دکانوں کے اندر اور باہر جمگھٹا لگانے والے گراہکوں اور ملازمین کے لیے نئے جرمانوں اور دیگر سزاؤں کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ، جی ہاں، انہوں نے عید کے موقع پر ایک ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ طالبان کے جتنے مخالفین ہیں،
तमाम मुखालिफिन को हम माफ़ करते हैं, आम माफ़ी का ऐलान किया। ईद उल फितर से पहले उन्होंने कहा कि माशरे के हर मर्द हर औरत रुकनों को उसका हक़ दिया जाए और आम माफ़ी का ऐलान किया। और उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि इस्लामी इमारात की इजारादारी की पॉलिसी नहीं और यकीन दहानी करवाई है कि अफ़गान माशरे के हर मर्द और औरत को उसके हुकूक़ दिए जाएंगे ताकि किसी को महरूमी या नाइंसाफ़ी का एहसास न हो। डॉन अखबार के मुताबिक बयान में ये कहा गया है कि माशरे की समाज की तरक्की, फलाह बहबूद, इस्तेकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी तमाम काम शरीयत की रोशनी में किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने मुखालिफिन के लिए इस सूरत में आम माफ़ी का ऐलान भी किया और कहा कि अगर वो दुश्मनी कर दे तो उन्हें आम माफ़ी का ऐलान हम करते हैं। तालिबान कायद ने कहा है कि हम हर एक पर जोर देते हैं कि अपनी मुखालिफत तर्क करके माफ़ी से मुकम्मल फ़ायदा उठाएं और एक इस्लामी हुकूमत के क़याम में रुकावट न बने जो लाखों शुहदा, ज़ख्मियों, माजूरों, यतीमों, बेवाओं और मुश्किलात का शिकार अफ़गानों की ख्वाहिश है। और मुल्ला हैबतुल्लाह ने यह भी कहा है कि हमारी पॉलिसी की बुनियाद पर हम इस्लामी मुल्कों से बरादराना, दोस्ताना ताल्लुकात, पड़ोसियों के साथ हमजायगी और खित्ते और दुनिया के तमाम ममालिक के साथ तामीरी ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर इराक़ इंटेलिजेंस की आई है कि इराक़ के इंटेलिजेंस इदारों ने गुज़िश्ता 2 दिन पहले यानी बुध के रोज़ ये दावा किया है कि उनकी सिक्योरिटी इदारों ने दाइश के मकतूल सरबराह अबू बकर अल बगदादी का जो मुतवक्की जानशीन है उसको गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा इराक़ी इंटेलिजेंस का दावा है कि उन्होंने अल बगदादी के मुजव्वज़ा जानशीन को गिरफ्तार किया है। इराक़ी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने अबू बकर अल बगदादी के जानशीन होने वाले उम्मीदवार अब्दुल नासिर करदाश नामी शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इंटेलिजेंस इदारों ने मज़ीद ये भी कहा है कि करदाश ने दाइश को तफवीज़ करदा कमीशन की सरबराह की हैसियत से खिदमात अंजाम दी है। उसने अबू मुसअब अज़रक़ावी के ज़माने से लेकर अल बागूज़ी की लड़ाइयों तक शिद्दत पसंदों की कमान भी संभाली थी। पहले अलकायदा की सफ़ों में अस्करी कार्रवाइयों में इसने हिस्सा भी लिया है और दाइश के क़याम के बाद उसमें यह शामिल भी हो गया है। अब इराक़ी इंटेलिजेंस का दावा है कि हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से हम एक खबर आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर अमेरिका और चीन एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आमतौर से अमेरिका का मानना यह है कि चीन ही इसका जिम्मेदार है और चीन ने जानबूझकर ये बीमारी दुनिया में फैलाई और चीन इसका मुजरिम है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त ये भी खबर आई है, आपको मालूम है कि चीन इसका इनकार कर रहा है और अमेरिका की सदर पर वो चीन इल्ज़ाम लगा रहा है कि जनाब आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप ऐसी उल्टी सीधी बातें करके चीन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। खैर, अभी अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चीन ने जानबूझकर वुहान की जो लेबोरेटरी थी, तजुर्बागार थी, उसको तबाह कर दिया। यानी चीन, पॉम्पियो का यह कहना है कि चीन ने जानबूझकर, ताकि उस पर इल्ज़ाम ना आए, तो वुहान की जो लेबोरेटरी थी, तजुर्बागार थी, उसको तबाह कर दिया है। चीन ने वुहान वायरस लेबोरेटरी को जानबूझकर तबाह किया। पॉम्पियो ने आगे ये भी कहा कि चीन ने दुनिया में कोरोना के वबा को रोकने के लिए जिम्मेदारी से काम नहीं लिया। और बुध के रोज़ ट्रंप ने भी एक ट्वीट में चीन पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार है और उन्होंने ये कहा कि चीन को सोचना चाहिए कि इसकी गैर जिम्मेदारी ने इस वक्त दुनिया में कितनी तबाही मचाई है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सऊदी की है और बड़ी खुशी की भी खबर है कि ये लोग कितना ज़बरदस्त अपने नागरिकों को सुविधा दे रहे हैं, ये कितना ख्याल रख रहे हैं। ऐसी पागलों की जैसा लॉकडाउन लगाकर रास्तों पर गरीबों को मरने के लिए और कटने के लिए छोड़ नहीं दिया है, बल्कि पूरी तरीके से गरीबों को पैसा भी पहुंचा रहे हैं। जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो वहाँ के नागरिकों को हुकूमत की तरफ से पूरी तरीके से राशन किट और सैनिटाइज़र क्या क्या घर पर पहुँचा कर दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये आई है जो चौंकाने वाली खबर है और पूरी दुनिया के हुक्मरानों के मुंह पर जूता है, तमाचा है। वो खबर क्या है कि सऊदी शहरी ने बीमार बेटी के इलाज के लिए जब हुकूमत से इजाज़त मांगी तो हुकूमत ने क्या किया,
हुकूमत ने बाकायदा एक प्लेन उसको पेश कर दिया कि आप जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। सऊदी अरब के, ये खबर सऊदी अरब के जुनूबी इलाके असीर की है कि असीर में अपनी बीमार बेटी के लिए के इलाज और उससे रियाज यानी रियाज तक सफ़र की इजाज़त के हुसूल के लिए परेशान शहरी को वजारत सेहत की तरफ से ऐसी सहूलत दी गई जिस पर शहरी हैरान रह गए। शहरी भी हैरान रह गए, हम भी हैरान रह गए और पूरी दुनिया के हुक्मरानों को जूता है। यहाँ पर मरीज एम्बुलेंस में मर जा रहे हैं, मजदूर रोड पर ट्रेनों से कट जा रहे हैं, पटरियों पर कट जा रहे हैं, रोड पर मर जा रहे हैं। उनके लिए दवाओं का इंतजाम नहीं, बल्कि हमारे यहाँ की घटिया जहनियत देखिए। चंद पुलिस वाले कैसे हैं, सब नहीं हैं। चंद पुलिस वाले जो संगी जहन के और आतंकवादी जहन के हैं कि मध्य प्रदेश के बैतूल की खबर मैंने आपको बताया कि एक दीपक नामी वकील जो हिंदू है लेकिन दाढ़ी थी जिसकी वजह से वो मुसलमान दिख रहा था, तो उसको पुलिस ने कुत्ते की तरह मारा, जानवरों की तरह पीटा। ये हमारे यहाँ की घटिया जहनियत है। क्योंकि और कह भी रहे पुलिस वाले कि भाई दीपक माफ कर दो, हम समझ नहीं पाए, हमको लगा तुम मुसलमान हैं, हमने मुसलमान देखकर तुमको मारा, मुसलमान समझकर तुमको मारा, हमको माफ़ कर दो। हम दंगे फसाद में भी मुसलमानों को मारते हैं और हिंदुओं का साथ देते हैं, हम भी हिंदू हैं, तुम भी हिंदू हो, हमको माफ़ कर दो। जब वकील ने कदम उठाया तो खैर अफसोस भी होता है, बुरा भी लग रहा होगा, हुकूमत को, गवर्नमेंट को मिर्ची लग रही होंगी, लेकिन क्या करूँ। ये खबरें देखकर हैरत होती है कि सऊदी शहरी ने सिर्फ इजाज़त मांगी कि मेरी बेटी को रियाज के अस्पताल ले जाना है, इलाज ज़रूरी है, तो हुकूमत ने बाकायदा एक प्लेन उसके हवाले कर दिया कि इस प्लेन के ज़रिए से अपनी बेटी को ले जाओ। तो सऊदी से ये खबर आई है। al-Arabiya.net के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना की वजह से वजारत सेहत इस वक्त सबसे मसरूफ़ तरीन महकमा है, मगर असीर से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हसन अल खबरानी को हुकूमत की तरफ से दी गई सहूलत से साफ मालूम होता है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सऊदी हुकूमत शहरियों को और नागरिकों को और जनता को कितनी ज़बरदस्त अंदाज में सहूलत और सुविधाएं दे रही है।